Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 5 for marketing management. And today we will talk about uh, how we are supposed to identify the problems and try to find the solutions for the problems based on marketing research and how we can utilize those findings to further forecast the demand for our product or services. So let's get started. And let's try to identify or define what we mean by marketing research. It's a systematic design, collection, analysis, and reporting of data. Now comes the question, what will be the nature of data which we are supposed to collect and analyze, and based on that what are the findings relevant to a specific marketing situations facing the company. Let's try to understand कि marketing कौन department को क्या क्या problems face करनी पड़ सकती हैं with reference to the company product or offering. It can be related to product or brand or market design or offering or consumer perception about your product or service or the performance of your different products which are available in the market. Uh, um, Other than these, there can be factors which influence the performance of your organization. It can be internal or external forces which may impact overall performance of your product and the company in question. So let's see. What is the process? The very first step we have to focus on is the problem what our brand or company is facing at the moment. Right now, post-pandemic or when this pandemic started, all of a sudden there was a focus of consumers toward the survival and related products. Those पे बहुत ज़्यादा focus था instead of layup or recreational activities. एंड 6 महीने के ड्यूरेशन में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इट वाज एट हॉल्ट एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को रिवाइव करना शुरू कर दिया गया, वो प्रोसेस में आना शुरू हो गई एंड थैंकफुली आज हम इस सिचुएशन में कि ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गए. तो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पिछले 6 महीने का लॉस हुआ है, हाउ वी कैन ट्राई टू कवर दैट. क्योंकि उस लॉस में सिर्फ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक लॉस तो है ही है, बहुत सारे टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन ड्यू टू लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रिवेलेंट इन द कंट्री उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ गई होंगी. एक जो प्रॉब्लम और आ गई होगी शायद कि वो कंजम्पशन पैटर्न जो है वो स्विच कर गए होंगे. कंज्यूमर्स के जो उनके एग्जिस्टिंग थे या पोटेंशियल कस्टमर्स जिनको वो टारगेट करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुए होंगे. तो उसके लिए रेक्टिफाइंग कोर्सेज जो होंगे शायद वो फोकस हो सकते हैं, या पॉजिटिव साइड पे देख लें कि राइट नाउ वी वांट टू एनहांस द फुटस्टेप ऑफ आवर लोकेशन और कंपनी और प्रोडक्ट. जियोग्राफिक फुटस्टेप अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, या नया प्रोडक्ट का वेरिएंट अगर आप मार्केट में लेके आ रहे हैं तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं. एक और जो प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज कि आपका जो ब्रांड है या कंपनी है उसका बारे में ओवरऑल इम्प्रेशन जो है वो नेगेटिव अगर जनरेट हो रहा है तो हम वी कैन ट्राई टू सॉल्व दैट कि इसको हम पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ में ट्रांसलेट करें. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं. ना दिस इज़ अ सब्जेक्टिव एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ पे पर्सन इन क्वेश्चन कैन फेस एनी नेचर ऑफ प्रॉब्लम. इसके अंदर कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि अगर आप एक ही इंडस्ट्री में हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम एक ही प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी. जब मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव है तो इट कैन बी आइसोलेटेड एंड लोकेटेड टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन और इवन टू वन प्रोडक्ट एज वेल. Followed by after the successful identification of the problem which you want to address through your marketing research, then you have to develop a research plan which you are going to conduct to find the solutions for existing problem which you have identified. Followed by you have to collect the information relevant to the problem you are facing or uske resources. And after analysis of that information, you have to report and present your findings to the concerned quarters so they can take the corrective and timely decisions to achieve the organizational targets. So let's try to distinguish between different nature of problems. जैसे मैंने आपको वहाँ पर बता दिया. Sorry. Let's go to previous slide.
So first of all, we have to define the problem. Maybe आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉब्लम जो है जो कंजम्पशन है वो कम होती जा रही है, या मे बी आप उसकी सेल्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या अपनी मार्केट कैप्चर करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, या आप इंटरनल एनालिसिस कंडक्ट करना चाह रहे हैं टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट. It can be any aspect which is related to the performance and which can help and contribute for to achieve the organizational goals. After identifying the problem, you have to find the specific decision alternatives which can help you to solve the problem which you are facing. और lastly, आपने अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स देने हैं कि आप प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो, दे हैव टू बी स्पेसिफिक, क्लियर एंड कंसाइज. उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मार्जिन नहीं होना चाहिए, ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए कि डिसीजन मेकर्स अपने ओन पे उसको इंटरप्रेट करना चाहिए. जो कंक्रीट फाइंडिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपने रखे हैं, इसकी बेस पे आपकी रिसर्च आगे फर्दर प्रोसेस करेगी. सेकेंड स्टेप इज देन व्हेन यू आर एट रिसर्च प्लान डेवलपमेंट, तो उसके अंदर आपको डाटा सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं. लाइक वी हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा हैं हमारे पास, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं लेड ऑन द फाउंडेशन फॉर रिसर्च एनालिसिस, या हम थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या थर्ड पार्टी डाटा प्रोवाइडर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हम डाटा सोर्सेज कर सकते हैं. देन वी हैव टू गो फॉर कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे, क्वांटिटेटिव की तरफ जाएंगे, या आप नया कंट्रीब्यूशन एंड थ्योरी करेंगे, या आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करेंगे, या आप इन दोनों को ब्लेंड करेंगे कि क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव इन नेचर होगा. तो दैट डिपेंड्स. इंस्ट्रूमेंट्स आप कौन से यूज़ करेंगे? नाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर बेसिकली यूज्ड to collect the data. जो historical data that is already available in the market, तो we don't have to go for to collect that data. जब हम primary data की बात करेंगे तो उसके लिए हमें फिर different tools हैं, such as questionnaires हैं, behavioral observation है, scenario observation है, मुख्तलिफ tools हैं. जब इन पर बात करेंगे फिर उसको आगे further डिटेल में देख लेंगे. And sampling, yes, it is important to understand the sampling क्या है, different techniques क्या हैं, simple random sampling क्या होती है, snowball effect क्या है, and इसी तरह बाकी हम आगे further डिटेल में देखेंगे कि ये 4 components हैं, ये आपके रिसर्च प्लान को डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं. And the contact methods what we are going to use to contact with the respondents, live interviews होंगे, face to face होगा, observational groups होंगे, मुख्तलिफ methods हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके आगे हम यूटिलाइज करने के बाद फिर हर एक अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी आगे देखते हैं चैप्टर में. अब आ जाइए डाटा सोर्सेज जो आपके पास हैं. जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि 2 क्लासिफिकेशंस की जा सकती हैं, एक सेकेंडरी डाटा और एक प्राइमरी डाटा है. सेकेंडरी डाटा पहले से आपके पास एग्जिस्ट करेगा. लेट्स से यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो उसके लिए आपको आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. दैट वो आपके जो इंटरनल चेक पॉइंट्स हैं वहीं से आपके पास कलेक्ट हो जाता है, विच ऑलरेडी एग्जिस्ट. वो आपके कस्टमर केयर सेंटर के पास हो सकता है, कॉल सेंटर के पास हो सकता है, सोशल मीडिया जो टीम है उसके पास आपको रेलेवेंट बिहेवियर डाटा मिल सकता है. तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा. इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स, अगर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स लेना है तो वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे. तो इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं ये सेकेंडरी डाटा. लेट्स से आप इंडस्ट्री रेलेवेंट लेना चाहते हो तो आपको फिर जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से एक्सटर्नल भी सोर्स कर सकते हैं. एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा जो है ये आपको हर स्पेसिफिक पर्पज और प्रॉब्लम के लिए, चाहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्सटर्नली आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है, every single time you have to start from scratch for primary data collection, which is freshly collected, which is not available for the last 2 or 3 months. अब आइए हमारे पास रिसर्च अप्रोचेस क्या हैं. वी हैव डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेस. एक इसके अंदर ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा एंथ्रोग्राफिक है, थर्ड वन इज फोकस ग्रुप एंड सर्वेज एंड बिहेवियरल डाटा, एंड लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर टू यूटिलाइज फॉर आवर रिसर्च अप्रोच जो हमारी प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है उसको सॉल्व करने के लिए.
And this is just a representation of focus group. If you look at the image, तो आप देखोगे कि एक focus group जो है वो किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है और बाहर जो मॉडरेटर है, ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं, ये अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन की जा रही है। एंड इफ यू फील लाइक यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स है वो डिविएट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम जो डिस्कशन होनी है, तो उसको फिर वो मॉडरेट भी करते हैं, करेक्ट भी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑब्जर्विंग द पीपल who are part of a focus group जो किसी भी स्पेशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि आप पाकिस्तान के बारे में एजुकेशन फंड्स पे काम करना चाह रहे हैं, तो HEC कैन हायर द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम एजुकेशनल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो वो जो है एज ए ऑब्जर्वर बैठ सकते हैं, और रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं जो की स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इट कैन बी पेरेंट्स, इट कैन बी फैकल्टी, इट कैन बी स्टूडेंट्स। तो वो जो एक डिस्कशंस होगी उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो आपने कंसल्टेंट्स हायर किए हैं वो इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब आ जाइए, जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, वो क्वेश्चनर्स में आप बात करें तो ओपन एंड क्वेश्चंस हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, देन वी हैव क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं। हम इन तीन को इस्तेमाल करके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड में बेसिकली यू आर प्रोवाइडेड विद ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट। ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं नेचर। Just a simple example is, in arranging this trip, did you contact American Airlines? It's quite simple. You have to pick one answer. Either it's no or yes. So this is the nature of a dichotomous question. A multiple choice question, again you have to select one or two multiple options depending on the nature of question, but again ये भी expressive question नहीं होगा. With whom you are traveling on this trip? No one, spouse and children only, business associate, friends, relatives, and organized tour group. So you can select one or multiple options as per the requirements of the question for which you have to provide the answers. Likert scale, yes, normally it starts from 0 to 5, but it can be extended to 7 or 9 depending on the nature of and the purpose of your research. You can either expand it or contract it. Indicate your level of agreement with the following statements, that is, small airlines generally give better services than the large one. So you have to respond to a statement. They want to observe your opinion. Either you are going to agree or disagree, or maybe you can hold ground for neutral, where you can say neither agree or not disagree as per the statement. Then we have systematic differential, where you have to express your orientation towards American Airlines. Is what is your opinion? Is it a large airline or a small airline? Either it's experienced or inexperienced, or it is modern or old-fashioned approach to it. यहाँ पे आपके inclination towards different, तो ये systematic differential उसके अंदर differentiate करने की कोशिश की जा रही है। इम्पोर्टेंस स्केल, यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंस देनी होती है, वेटेज देनी होती है। यहाँ पर नंबर्स असाइन किए जाते हैं पॉइंट्स को। इट कैन बी 1 2 3 4 5 ऑन स्केल फ्रॉम 0 to 10, 0 to 5, 0 to 3। इट डिपेंड्स अगेन क्या जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर बेस पे होता है। तो इधर यू कैन गो फॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट एयरलाइन फूड सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू यू, और एक्सट्रीमली अगेन इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, एंड every respondent is going to select the different option. रेटिंग स्केल्स, यहाँ पे आपने रेट करना है कि आउट ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइन, व्हाट इज द टॉप मोस्ट सर्विस यू वुड लाइक टू हैव। लाइकवाइज एयरलाइन फूड सर्विस इज एक्सीलेंट, वेरी गुड, फेयर, पुअर और एवरेज। क्वेश्चन बाय टाइप्स में आप जाते हैं कि आपकी इंटेंशन टू बाय स्केल को जब हमने चेक करना है कि हाउ मच विलिंग यू आर प्रोवाइडेड द राइट इंसेंटिव, आप कितने रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए कि आप प्रोडक्ट परचेज करोगे या सर्विस अवेल करोगे या नहीं करोगे। हाउ लाइकली यू आर टू परचेज टिकट्स ऑन अमेरिकन एयरलाइन इफ इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एक्सेस वर अवेलेबल। सो सिंगल फीचर है कि अगर आपको इन फ्लाइट इंटरनेट की सर्विस मिलती है तो क्या इस बेस पे आप एयरलाइन का टिकट परचेज करोगे। मे बी समवन विल से डेफिनेटली आई विल बाय इट, और मे बी समवन लाइक मी विल से नॉट श्योर,
or probably not buy, or definitely not buy the ticket based on this only one function that they provide the internet access in flight. I will stop this lecture here, and we'll see you people in the next part of this lecture series. Till then, Allah Hafiz. Looking forward for a healthy and interactive session for this lecture. Till then, Allah Hafiz.